Hello, I am Dr. Rakesh Uke, MD Medicine and let's see today pharyngitis. ये एक गले का इन्फेक्शन है तो इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि इसके ना इलाज करने की वजह से सादे गले में खराश से लेके हार्ट में छेद होना और किडनी डैमेज होना ऐसे ये प्रॉब्लम कर सकता है। अभी देखते हैं इसे डिटेल इन इंग्लिश और फिर हिंदी में। कॉज क्या होता है इसका? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकाई, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, मोस्ट common bacterial cause of pharyngitis. Transmission by droplets of infected secretions. Group A streptococci producing erythrogenic toxin may produce scarlet fever in susceptible persons. Symptoms and signs. लक्षण क्या होते हैं इसके? स्ट्रेप थ्रोट, एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, सोर थ्रोट, पेन इन swallowing, malaise, headache, nausea, vomiting, and tender cervical adenopathy. Soft palate, pharynx, and tonsils are red and edematous, may be purulent exudate. Centaur clinical criteria for diagnosis of streptococcal pharyngitis: temperature greater than 38 degrees Celsius, tender anterior cervical adenopathy, lack of cough and pharyngotonsillar exudate. इसमें कफ नहीं आता है ये डिसीज में। रैश ऑफ स्कारलेट फीवर, स्कारलेटिना, डिफ्यूजली इरिदेमेटस एंड रिजेंबल्स सनबर्न, superimpose fine red papules, gives skin sandpaper consistency, most intense in groin and axillas, blanches on pressure, may become petechial, fades in 2 to 5 days, leaving fine disquamation. Face is flushed with circumoral pallor and strawberry tongue. Tongue is coated with enlarged red papillae. इसकी हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इसमें रहेगा ल्यूकोसाइटोसिस विथ न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंस। थ्रोट कल्चर करा सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ 80 to 90%. रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टेप्टोकोकल एंटीजन डिटेक्शन आर स्लाइटली लेस सेंसिटिव देन कल्चर। सेंटोर क्राइटेरिया जो हमने अभी डिस्कस करा है उसके 4 फीचर्स है। तो फॉर आइडेंटिफाइंग विच पेशेंट्स वी हैव टू डू रैपिड एंटीजन टेस्ट और थ्रोट कल्चर नीडेड। हु मीट्स 2 or more criteria merit further testing. When 3 or more criteria present, laboratory sensitivity of rapid antigen testing exceed 90%. When only one present, streptococcal pharyngitis is unlikely. ओके, सो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हमने इसकी ट्रीटमेंट बराबर नहीं करी तो इसमें सुपेरेटिव कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, पेरिटॉन्सिलर अपसेस, मास्टोइडाइटिस एंड सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस। नॉन सुपेरेटिव कॉम्प्लिकेशंस लाइक रूमेटिक फीवर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। रूमेटिक फीवर जो कि बच्चों के हार्ट में छेद कर सकता है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो किडनी फेल कर सकता है। इसको हम दूसरे डिसीज से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट रिजेंबल्स pharyngitis caused by viruses like adenovirus, Epstein Barr virus, or bacteria like Fusobacterium necrophorum and Arcanobacterium hemolyticum may cause rash. Acute HIV infection, pharyngitis and lymphadenopathy is common. Generalized lymphadenopathy, atypical lymphocytosis, splenomegaly and positive serological test distinguish mononucleosis from streptococcal pharyngitis. Diphtheria causes pseudomembrane, pharyngeal candidiasis, white patches of exudate and less erythema is seen. ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएशन के लिए। विंसेंट फ्यूजोस्पाइरोकिटल जिंजिवाइटिस और स्टोमेटाइटिस, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजियोस्टोमेटाइटिस प्रेजेंट विथ अ शैलो अल्सर इन माउथ, क्लैमाइडिया ट्रकोमैटिस, नाइजेरिया गोनोरी एंड प्राइमरी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। इन दोज विथ रिस्क फैक्टर, रिट्रोफैरिंजियल अपसेस और बैक्टीरियल एपिग्लोटाइटिस, व्हेन ओडाइनोफेजिया एंड डिफिकल्टी in handling secretions and severity of symptoms disproportionate to the findings on examination of pharynx. F. necrophorum
causes pharyngitis similar to group A hemolytic beta hemolytic streptococci in young adult and adolescent, and is associated with suppurative thrombophlebitis of internal jugular vein, Lemierre syndrome, metastatic infections and bacteremia. नाउ इसकी देखते हैं हम ट्रीटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिस्कशन का. सो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी फॉर रिजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन. ओके, सो क्या दे सकते हैं हम इसमें? इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन जी 1.2 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलर एज अ सिंगल डोज, और टेबलेट पेनिसिलिन वीके 250 mg 4 times a daily और 500 mg twice daily फॉर 10 days, और कैप्सूल एमोक्सिसिलिन ये रेडिली अवेलेबल होता है 100 mg वंस अ डेली और 500 mg ट्वाइस अ डेली फॉर 10 डेज. ये इसकी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है. फिर उसका आता है नेक्स्ट, अगर इसमें अगर एलर्जी है तो सेफेलोस्पोरिन शुड बी रिजर्व्ड फॉर पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन बट हु डू नॉट हैव इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी. ओके, सो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? टेबलेट सेफालेक्सिन 500 mg ट्वाइस अ डेली फॉर 10 डेज, और कैप्सूल सेफ्डिनिर 300 mg twice a daily for 5 to 10 days और 600 mg daily for 10 days. Tablet Cefadroxil 1000 mg once a daily for 10 days और tablet Cefodoxim 100 mg twice a daily for 5 to 10 days. Okay, अभी ये आता है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, मैक्रोलाइड विच आर लेस इफेक्टिव देन पेनिसिलिन्स, ऑल्टरनेटिव फॉर द पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स एंड कंसिडर्ड सेकंड लाइन एजेंट्स. कौन से ड्रग दे सकते हैं मैक्रोलाइड में? टेबलेट इरिथ्रोमाइसिन 500 mg 4 times a day और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg once a daily for 5 days. Macrolide resistant strains almost always are susceptible to tablet clindamycin 300 mg 3 times a daily, a suitable alternative to penicillin 10-day course is effective. जिनमें पेनिसिलिन की एलर्जी होती है या मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट केसेस में. अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ recurrent rheumatic fever, patient who have had rheumatic fever treat with continuous course of antimicrobial prophylaxis at least 5 years. Effective regimens are tablet erythromycin 250 mg twice a daily और tablet penicillin G 500 mg daily. Okay, सो हम अभी ये देखते हैं कि जैसे पेशेंट आएंगे हमारे पास में, या अगर हमें ये तकलीफ होती है, जैसे फेरिंजाइटिस गले का इन्फेक्शन है, जो चालू कैसे होता है? जैसे बुखार आएगा हमें, उसके साथ में गले में दर्द होना, खराश होना, गले में इरिटेशन होना, खाने निगलने में दर्द होना, सर दर्द, उल्टी. इसमें लेकिन याद रखना है खांसी नहीं होती है, ये इसके अगेंस्ट जाता है. ये गला लाल और इडिमेटस होना, उसमें पस फॉर्म हो सकता है उसमें. ठीक है, हम इसका टेस्ट कैसे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे कि अगर हम टेस्ट करेंगे सीबीसी, उसमें दिखेगा डब्ल्यूबीसी बड़ा है और न्यूट्रोफिल ज्यादा रहेंगे. थ्रोट कल्चर हम कर सकते हैं जो कि 80 to 90% सेंसिटिव है स्टेप थ्रोट के लिए. और दूसरा और क्या कर सकते हैं? रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव रहेगी इस डिसीज में. अगर हमने जान लिया कि ये पेशेंट में ये तकलीफ है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुआ है. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है तो हमें उसमें, जैसे हम डिस्कस करें अभी, साइनोसाइटिस हो गया, ओटाइटिस मीडिया, पेरिटॉन्सिलर अब्सेस हो गया, वहां पे गले में बहुत ही दर्द है, स्वेलिंग है वहां पे, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं. वहां पे देख सकते हैं हम आगे कि इसको कॉम्प्लिकेशंस हो तो नहीं गए हैं वहां पे. और अगर मान के चलिए वहां पे कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है. जैसे दो टाइप के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, हमने देखा है, सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव. तो नॉन सुपरेटिव ये ज्यादा डेंजर होते हैं, जो कि रोमेटिक फीवर है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है. ये लॉन्ग टर्म का हमें डैमेज दे सकते हैं ये. ओके, सो हम देखते हैं इसे आगे कैसे करते हैं. इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? जैसे पेनिसिलिन इसके ड्रग ऑफ चॉइस है, सो पेनिसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अमोक्सिसिलिन हम कर सकते हैं, या फिर सेफेलोस्पोरिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब पेनिसिलिन को एलर्जी रहे बट नॉट इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ओके, अगर वो रहती है तब हम नहीं दे सकते हैं उनको. ओके, सो इस केस में क्या मैक्रोलाइड इस्तेमाल कर सकते हैं? ये लेस इफेक्टिव है, हमें नहीं करना चाहिए, बट अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया. ओके, और इनमें भी अगर रेजिस्टेंट अगर आता है तो हम क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं 300 mg 3 times a day. तो ऐसे हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं. ओके, तो इसका कोर्स कंप्लीट हमें करना होता है, इसमें बीच में नहीं छोड़ना है हमें, ताकि ये बैक्टीरिया ऐसे कोई इनके वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हमें डेवलप हो जाए. ओके, सो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा. ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में.
थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, उसके हम आंसर देंगे।